We are starting with question number 10 students. This is the 10th question of this chapter. Again, before starting, 3 important points. If you find any expense or losses in this chapter, debit capital reduction account. If there is income gains, credit capital reduction account. Any intangible asset, losses and fictitious asset must be written off. In case of contingent liability, which is given as a note below balance sheet, if they ask us to pay, we will record the entry. If it is sacrifice, then we will ignore it. Following is the balance sheet of Delta Limited as on 31st March 2006. 15,011.5% preference shares of rupees 10 each fully paid. 13,000 10% preference shares of rupees 10 each, rupees 5 paid up. 20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up. 12% debentures of 100 each. 11% debentures of 100 each. Interest due means outstanding interest on debentures, creditors. Goodwill is an intangible asset. Patents is also an intangible asset, so we have to write it off. Building, machinery, furniture, investment, debtors, bills receivable, bank. Profit and loss account on asset side means loss, so we have to write it off. Following scheme of reconstruction was submitted and approved by the court. 11.5% preference shares of 10 each fully paid were reduced to 14% preference shares of 10 each, rupees 6 per share paid up. 10% preference shares of 10 each, rupees 5 paid up, were reduced to 13% preference shares of 10 each, rupees 3 per share paid up. Equity shares of rupees 10 each fully paid were reduced to denomination of rupees 5 each fully paid. 11% debenture holders agreed to accept 50,000 equity shares of 5 each in full settlement of their claims. Debenture holders agreed to forego interest due on debentures. Creditors agreed to forego 10% of their claims. Company recovered as damages a sum of rupees 50,000 which was not recorded in the books. Cost of reconstruction means expense was paid 2250. Assets are to be revalued as under building 250, machinery 275, furniture 10,000, investments 90,000, debtors 3 lakh. All intangible assets and accumulated losses are to be written off. You are required to pass entries, prepare reduction account and balance sheet after reconstruction. So this is books of Delta Limited, students. So at the top, this is Journal of Delta Limited. So once again, we start with adjustment number 1, students. देखते हैं adjustment 1, what does it says? 11.5% preference shares of 10 each fully paid. You can go to the balance sheet. Balance sheet देखो students. बैलेंस शीट में देखो आपको फर्स्ट आइटम लाइबिलिटीज में मिलेगा 11.5% preference shares of 10 each of rupees 10 each fully paid. Amount was 1,50,000. So adjustment 1 is related to the first preference share which is given in liability. 11.5% preference shares of 10 each fully paid. बैलेंस शीट में उसका फेस वैल्यू 10 था स्टूडेंट्स. ओके, वो reduced to 14% preference shares of 10 each. देखो पुराना नाम उसका ओल्ड नेम was 11.5% preference share. What was the face value? 10 each. वो reduced to 14% preference shares. अभी उसका नया नाम, न्यू नेम 14% preference shares of rupees 10 each. But face value तो सेम है स्टूडेंट्स. नाम चेंज हो गया from 11.5% to 14%. नाम चेंज मतलब यहाँ पे rate of dividend I am talking about. Initially it was 11.5% dividend rate. Now dividend rate is 14%. If you remember the first lecture of this chapter, students, ये जो change in rate होता है ना, we call it as variation in rights. ये variation in rights है. Initially उनको 11.5% dividend मिलता था. अभी later on, then they will receive 14% rate of dividend. Okay, but face value अभी भी same है, students. 11.5% preference shares of 10 each fully paid were reduced to 14% preference shares of 10 each. तो देखो फेस वैल्यू दोनों का सेम है. जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट नंबर ए, फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दोनों का फेस वैल्यू सेम है. सो जर्नल एंट्री विल बी 11.5% preference share capital account debit. Preference share capital account debit. What we are giving them? 14% preference share.
So to 14% preference share capital account credit. Okay. Now face value तो same है students 10 अभी unless and until it is stated in the adjustment we never change the number of shares. अगर आपको याद आया हो तो okay, we keep the number same. value change होता है, number change नहीं होता students. कभी कभी ऐसा होता है कि they ask us to change the number also, it is possible, but कुछ नहीं कहा है तो that means number will remain same. Go to the balance sheet. Number of shares was 15,000. Of 10 each, amount given in balance sheet was 1,50,000. What I said, we keep the number same. तो number मत change करना, number अभी भी 15,000 रहेगा. 15,000 shares. वापस adjustment में आ जाओ. 11.5% preference shares of 10 each fully paid were reduced to 14% preference shares of 10 each. अभी स्टूडेंट्स यहां तक पढ़ेंगे ना तो व्हाट स्टूडेंट्स इट मींस 15,000 into 10 अगेन 1,50,000 आएगा. सो डेबिट क्रेडिट टैली हो जाता है. सो नो लॉस नो गेन इफ यू रीड अप टिल देयर. बट देखो आगे क्या लिखा है, ₹6 पर शेयर पेड अप. फेस वैल्यू सेम रहेगा बट पेड अप वैल्यू विल रिमेन 6 नाउ. पेड अप वैल्यू मतलब ऐसा सोच के चलो कि शेयर होल्डर ने अभी तक ₹6 पे किया है. So 15,000 into 6 if I do it will be 90,000. So this is the important point. First they say 11.5% का face value 10 है, 14% का भी face value 10 है. So in that case it should be 11.5% to 14% preference share. Amount should be same. 15,000 into 10 1,50,000 because face value same रखा है. But later on adjustment says that ₹6 per share paid up. What does it means ₹6 per share paid up? मतलब फेस वैल्यू 10 ही रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट. बट वी विल एज्यूम, हमें ऐसा सोचना है कि शेयर होल्डर ने ₹6 ही पे किया है ऑन दैट शेयर. सो वी मस्ट मल्टीप्लाई बाय ₹6. सो 15,000 into 6 is 90,000. सो डिफरेंस आ रहा है. ऑन क्रेडिट साइड इट विल गो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सो दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली स्टूडेंट्स. पहला वो लोग बोल रहे हैं फेस वैल्यू सेम. तो एज अ स्टूडेंट व्हाट एंट्री आई विल रिकॉर्ड 11.5% टू 14% प्रेफरेंस शेयर. फेस वैल्यू 10 सेम है तो अमाउंट भी सेम होना चाहिए 1,50,000. बट लेटर ऑन दे मेड अ चेंज. नाउ दे आर सेइंग नहीं, पेड अप वैल्यू 6 माना जाएगा. ₹6 पर शेयर पेड अप. सो आई केप्ट द नंबर सेम. नंबर तो चेंज नहीं करूंगा बिकॉज नंबर चेंज करने नहीं कहा है एडजस्टमेंट में. हाँ, इंस्टेड ऑफ 10 फेस वैल्यू 10 ही रहेगा. But we will assume that shareholder has paid us 6. So 15,000 into 6, 90,000. Okay. So this was adjustment number A. Narration will be, we will write been paid up value of, preference shares reduced to ₹6. पेड अप वैल्यू रेड्यूस हुआ स्टूडेंट्स. फेस वैल्यू अभी भी 10 देखो सेम है. तो दैट इज द रीजन आई एम रिकॉर्डिंग बीन पेड अप वैल्यू रेड्यूस. आई डिडंट रिकॉर्ड इट बीन फेस वैल्यू रेड्यूस. ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स यहां तक. नेक्स्ट नंबर बी, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹5 पर शेयर पेड अप. बैलेंस शीट में जाओ, देखो एक 13,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स 10 each है, ₹5 पेड अप, अमाउंट 65,000. They are talking about this particular preference share capital which is given as item number 2 under liability side of balance sheet. अब एडजस्टमेंट पढ़ो. 10% preference shares of 10 each, ₹5 पेड अप. ठीक है, वो पार्टली पेड अप था, ₹5 पेड अप था, बैलेंस शीट में मेंशन किया है. वो reduced to 13% preference share just like the previous adjustment. 11.5 14% हो गया ना. Now they are saying जो 10% preference share उसको 13% कर लो. So this is known as variation in rights, change in rate of dividend. So 10% preference share capital, 10% preference share capital account debit to what we are making it 13% preference share. So this is variation in rights account credit. बैलेंस शीट में इसका वैल्यू 65,000. एंड स्टूडेंट्स वंस अगेन मैंने क्या कहा, नंबर वी मस्ट नॉट चेंज. बैलेंस शीट में नंबर 13,000 है तो अभी भी 13,000 लिखेंगे. अब डिसाइड करेंगे वैल्यू कितना लिखना है. ओके, 10% preference shares of 10 each, ₹5 paid up were reduced to 13% preference shares of 10 each.
पुराना शेयर जो 10% प्रेफरेंस शेयर था उसका फेस वैल्यू 10 ईच था, नया प्रेफरेंस शेयर 13% प्रेफरेंस शेयर उसका भी फेस वैल्यू 10 है स्टूडेंट, तो फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, बट लेटर ऑन व्हाट दे से ₹3 per share paid up. So you have to assume that shareholder has paid you only 3, so 13,000 into 3 will be 39,000. So again there is a difference on credit side, so it will go to capital reduction account credit 6539, so this should be 26,000. So students again जब narration लिखेंगे तो what will write? Will write being paid up value, not face value. Paid up value change हुआ है, face value अभी भी 10 है. Being paid up value of preference shares reduced to rupees कितना 3. Being paid up value of preference shares reduced to ₹3. Okay, this was adjustment number 2. फेस वैल्यू दोनों में सेम है स्टूडेंट्स. अच्छा, अभी क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि 11.5% से 14% हो गया, 10% से 13% हो गया, इससे लॉस गेन नहीं होता है स्टूडेंट्स. वेन एवर देयर इज वेरिएशन इन राइट्स, मतलब रेट चेंज इन रेट ऑफ डिविडेंड, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिबेंचर, देयर इज नो लॉस गेन. हाँ, ये गेन क्यों आया? क्योंकि वैल्यू चेंज हुआ. गेन इसकी वजह से नहीं है स्टूडेंट्स, ये रेट ऑफ डिविडेंड की वजह से. प्लीज नोट. सो हियर आई विल राइट change in rate of dividend. Change in rate of dividend is variation in rights because of which there is no gain, no loss. तो अगर चेंज इन वेरिएशन ऑफ राइट्स होगा, दैट मीन स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, ये रेट ऑफ डिविडेंड चेंज होगा, तो उसकी वजह से लॉस गेन नहीं होता है स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाट वी हैव रिकॉर्डेड हियर. ओके, सो 11.5% से 14% हो गया, 10% से 13%, सो देयर इज नो लॉस गेन. ये गेन क्यों आया? बिकॉज आपने पेड अप वैल्यू चेंज किया, यहाँ 6 कर दिया या 3, पहला 10 था फिर 6 कर लिया 3, बट फेस वैल्यू अभी भी सेम है स्टूडेंट्स, 10 ही है. Paid up value has changed. So this was adjustment number B. A और B important है students. अभी now all adjustments are very easy. Past previous questions में हम लोग ये कर चुके हैं. So A और B पे ध्यान देना है हमको. C, equity shares of 10 each fully paid were reduced to denomination of 5 each fully paid. So adjustment number C, they are talking about equity share capital. Equity share capital account debit to equity share capital account credit. Now ध्यान से देखो, equity shares given in balance sheet is 20,000 equity shares of 10 each. Amount given was 2 lakh. We keep the number same, 20,000. बट एडजस्टमेंट ने क्या बोला है? यू हैव टू मेक इट 5 of ₹5 फुल्ली पेड अप. सो दैट मीन्स फेस वैल्यू चेंज हो गया. इक्विटी शेयर्स 10 का था, इट वॉज reduced टू डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 each fully paid. अंडरलाइन fully paid. fully paid इंडिकेट्स कि ₹5 जो है वो नया फेस वैल्यू है. सो 20,000 into 5 is 1 lakh. 2 lakh से 1 lakh हो गया. सो देयर इज अ गेन फॉर द कंपनी. वी विल क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. We will credit capital reduction account 1 lakh. Okay, so underline please that ₹5 each fully paid up. वो fully paid से it indicates that, उससे मालूम पड़ेगा स्टूडेंट्स हमको, उससे पता चलेगा कि face value has changed from 10 it becomes 5. So यहाँ पे हम लिखेंगे being face value of equity share, paid up value नहीं, face value of equity shares reduced to ₹5. This was adjustment number C. अभी नंबर D देखो. 11% डिबेंचर होल्डर्स थे. 11% डिबेंचर ना स्टूडेंट्स, इट इज गिवन इन बैलेंस शीट. देखो अमाउंट 3 लाख है. 11% डिबेंचर होल्डर्स
agreed to accept 50,000 equity shares of 5 each in full settlement of their claim. Settlement मतलब उनको पे करना है. डिबेंचर लाइबिलिटी है, उसको पे कर रहे हैं, सो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा. क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर्स डेबिट होता है. यहाँ पे वो डिबेंचर सेटल करने कह रहा है. डिबेंचर सेटल मतलब डिबेंचर को पेमेंट करना है. सो 11% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. Sorry, not debenture holders, we write just debenture. Adjustment में they use the term holder, but we must write debenture. 11% debentures account debit. Now settle करने बोला है तो we must write to cash bank, but cash bank से payment नहीं करना है. They have clearly said they agreed to accept equity shares. So to equity share capital account credit. अच्छा. And full settlement का है स्टूडेंट्स. क्लियरली फुल सेटलमेंट मतलब एंटायर अमाउंट ऑफ 11% डिबेंचर विच इज गिवन इन बैलेंस शीट 3 लाख. बट इक्विटी शेयर्स हम कितने दे रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़ो. 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियरली वहां पे लिखा है 50,000 शेयर्स ऑफ 5 ईच. सो अमाउंट विल बी 2,50,000. सो अगेन देयर इज अ डिफरेंस बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड. कंपनी के लिए गेन है because liability 3 lakh का था, you are making payment only 2,50,000, so difference is gain. वहां पे clearly they have used the term in settlement, in full settlement of their claim. Students, part settlement नहीं है, पूरा आप settle कर रहे हैं. Against 3 lakh you are paying them 2,50,000, so difference is gain for the company. Being debenture holders claim settled. Number E, debenture holders agreed to forego the interest due on debentures. देखो interest due on debentures ना स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में आपको दिया है. इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स 19,500. तो उन्होंने फॉरगो किया मतलब सैक्रिफाइस. अगेन आई रिपीट, सैक्रिफाइस का मतलब इट्स नॉट ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कंटिंजेंट लाइबिलिटी किसको कहते हैं? अ लाइबिलिटी विच इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, इट इज गिवन एज अ नोट बिलो बैलेंस शीट. दिस इज नॉट ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी. व्हाई? बिकॉज ये इंटरेस्ट आपको बैलेंस शीट में दिया है. व्हेन ए लाइबिलिटी इज गिवन इन बैलेंस शीट इट इज नॉट कंटिंजेंट. डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू सैक्रिफाइस एडजस्टमेंट इन इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर. So interest due on debenture is a liability. Liability sacrifice हुआ तो gain for the company. All gains in this chapter credit capital reduction. Capital reduction credit होगा, that means liability debit होगा. So interest due on debentures account debit to capital reduction account. Amount is 19,500. Mean interest due on debentures waived या foregone, जो भी term है वहां पे. Forgo, so being interest due in debentures foregone. So this was adjustment number E, students. Now next number F है. What they say? Creditors agreed to forgo. Again forgo मतलब sacrifice. Creditors देखो बैलेंस शीट में आपको दिया है 4,50,000. They are ready to sacrifice how much? 10%. Liability sacrifice हुआ तो gain for the company. All gains in this chapter we credit capital reduction. So capital reduction credit मतलब liability debit. So creditors account debit. Reduction in liability means gain. All gains in this chapter we credit capital reduction. 4,50,000 into 10%, it comes to 45,000. Creditors agreed to forgo 10% of claim. So forgo मतलब sacrifice, liability sacrifice मतलब reduction in liability. Reduction in liability is gain for the company. All gains credit reduction account. So creditors to reduction. This was adjustment number F. Been reduction in claim of creditors. Next number G करते हैं.
Adjustment number G, company recovered as damages. Students underline recovered. Recovered का मतलब होता है received, company को मिला. So debit what comes in? So bank account debit होगा students. Clearly they have used the term recovered. They are not paying, they are recovering. So bank account debit recovered as damages of sum of rupees 50,000. So debit part तो एकदम simple है because they have used the term recovered. So company recovered means received, bank account debit recovered as damages which was not recorded in books. ये ऐसा damages है, ये ऐसा अमाउंट है कि ये बैलेंस शीट में नहीं है स्टूडेंट्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, दैट मीन दिस आइटम इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट. सो इसके लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को, बिकॉज देर इज नो सच आइटम इन बैलेंस शीट. ये डैमेजेस नाम का ऐसा कोई आइटम बैलेंस शीट में नहीं है. इट्स नॉट एन अजम्पशन दे हैव सेड. ओके स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा ना, जो चीज बैलेंस शीट में नहीं होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी. ओके, नाउ वी कैन से दिस इज कंटिंजेंट एसेट स्टूडेंट्स, बिकॉज कंपनी रिकवर कर रही है, पे नहीं कर रही है. डैमेजेस अभी तक हमने 5 जो भी क्वेश्चंस आए थे ना स्टूडेंट्स, वहां पे डैमेजेस हमेशा कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता था, बिकॉज कंपनी हैज टू पे, वहां पे करना पड़ता था. हियर कंपनी इज रिसीविंग डैमेजेस, सो रिसीव कर रही है ना स्टूडेंट्स, सो इट बिकम्स एन एसेट. बट ये कौन सा एसेट है? कंटिंजेंट. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन बुक्स ऑफ अकाउंट. दे हैव सेड व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, व्हिच इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट. सो ये कंटिंजेंट एसेट है. बीन damages recovered. So you can say it is a contingent asset. Next adjustment number H, or भी easy है. Cost of reconstruction means expense. All expense losses in this chapter debit capital reduction. So capital reduction account debit. So we are paying cost of expense, cost of reconstruction was paid 2250. पे कर रहे हैं, क्लियरली मेंशन किया है. सो टू बैंक अकाउंट अमाउंट 2250 बीन एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पेड. नेक्स्ट एडजस्टमेंट आई और सिंपल है. Assets to be revalued. Many times I have said revalue मतलब appreciation भी हो सकता है, depreciation भी, increase भी हो सकता है, decrease भी. For that what we do, we compare the balance sheet value with the values given in adjustment. Land and building, balance sheet में 1,75,000, adjustment में 2,50,000. So increase हुआ, increase in value of asset, increase in value of building मतलब gain. Plant machinery, balance sheet 3,25,000. In adjustment 2,75,000. So decrease है, decrease in value of asset मतलब loss. Furniture in balance sheet 15,000. In adjustment 10,000. Decrease है, so loss. Investments in balance sheet 75,000. Investments in adjustment 90,000. Increase, so that means it is gain. Debtors in balance sheet 3,15,000. Debtors in adjustment 3 lakh. So value has decreased, so it is loss. तो जो एसेट पे लॉस हुआ वी कैन रिकॉर्ड वन सेपरेट एंट्री फॉर दैट, और जो एसेट पे गेन हुआ वी कैन रिकॉर्ड अ सेपरेट एंट्री फॉर दैट. बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट पे स्टूडेंट्स गेन है, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स. ऑल गेन्स, बिकॉज वैल्यू बढ़ गया ना एसेट का, ऑल गेन्स इन दिस चैप्टर वी क्रेडिट रिडक्शन अकाउंट. सो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. Investment account debit, it's a gain, so credit capital reduction account. अभी गेन कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? बिल्डिंग का वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट इज 175 और एडजस्टमेंट में 2,50,000, so 250 minus 175, so it comes to 75,000 building. Investments given in balance sheet is, investments balance sheet में 75 and in adjustment 90, so 90 minus 75, increase of 15. So 75 and 15 total reduction will be 90,000. We'll say being assets revalued. This was adjustment I, and you can say I का ये first part था.
then second part for that same adjustment. अभी प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर्स पे लॉस हुआ है because value has decreased. All losses in this chapter debit reduction account. So capital reduction account debit to plant machinery, to furniture account, to debtors account. Again, difference between balance sheet value and book value. Plant machinery 3,25,000 balance sheet minus adjustment में 275, so 50,000. Furniture in balance sheet it is 15 and adjustment में 10, so 5,000. Debtors in balance sheet it is 75, sorry 3,15,000. I'm sorry 3,15,000 and 3 lakh in adjustment, so 15,000. 15 plus 5, 20 plus 50, so reduction debit will be 70,000. Again, Dean assets revalue. Last adjustment, all intangible asset and losses to be written off. नहीं भी कहेगा तो compulsory होता है adjustment J. Intangible asset write off करना मतलब loss. Write off means remove from books of account. एसेट को बैलेंस शीट से निकाल रहे हो तो लॉस होगा. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. गुडविल इज इंटैंजिबल. टू पेटेंट्स अकाउंट, अगेन इंटैंजिबल. एंड टू P&L account it is loss because it is given on asset side of balance sheet. Copy the amount which is given in balance sheet. Goodwill 80, patents 54 and P&L 1,75,500. टोटल कर लेते हैं 80, 54, 17,500. So 3,09,500. So these are the journal entries right from adjustment A to J. Students इसमें entry number A and B is important students. क्योंकि इसमें एंट्री नंबर ए एंड बी में कैसा उन्होंने कहा था कि 11.5% प्रेफरेंस शेयर्स, यू हैव टू मेक इट 14%. सो 11.5 to 14%. दोनों का फेस वैल्यू सेम रखने कहा है इफ यू रेफर द एडजस्टमेंट. बट देन लेटर ऑन क्लियरली दे से कि पेड अप वैल्यू शुड बी मेड 6. सो नंबर मैंने सेम रखा विच वाज गिवन इन बैलेंस शीट एंड मल्टीप्लाइड बाय 6. सेम वे एडजस्टमेंट नंबर बी 10% preference share make it 13%. Adjustment says that face value same होगा, but later on they say नहीं, paid up value नए share का 3 होना चाहिए. So 13,000 into 3. This was the important part. और ये जो change in rate होता है ना, this change in dividend, it is variation in right, and because of change in variation in right ना, there is never loss or gain. ठीक है, तो अगर dividend interest rate, dividend rate बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा ना, so never think about loss or gain students in this chapter. हाँ. Now we'll start with capital reduction account. They have asked also capital reduction बनाना है हमको students. तो students यही मैं बना दूँ, चलो. Capital reduction account. Here I am drawing capital reduction. We are drawing capital reduction account. So at the top, capital reduction account. Start from entry number 1. Last entry तक देखेंगे, जहां जहां capital reduction का नाम होगा, we'll post it to this account. Okay. Start from the beginning. First entry reduction account credit है. उसके अगेंस्ट में अमाउंट इज 60,000. सो बाय 11.5% प्रेफरेंस शेयर.
by 11.5% preference share. Capital. Amount against reduction was 60,000. This was from entry number 1. Entry number 2, again reduction credit at 26,000 by 10% preference share. By 10% preference share capital. Amount is 26,000. Amount is 26,000. Third entry, again credit 1 lakh by equity share capital. By equity share capital. Amount is 1 lakh. You never write SHCAP, students. Exam में आप लोग पूरा लिखना SHARE share capital. Number 4, again credit 50,000 by 11% debenture. By 11% debentures. Amount is how much? 50,000. Interest due to cap, again credit 19,500 by interest due on debenture. By interest due on debenture 19,500. Creditors to capital reduction. Here. So by creditors. Amount 45,000. Bank to capital reduction. Again credit by bank account. Amount 50,000. Then capital reduction debit to bank. Capital reduction debit है students. Debit to bank. So to bank account. Capital reduction to bank is 2250. Land and building investment to capital reduction. So credit में आएगा by land and building account. Amount 75,000. By investment account. Amount 15,000. Next, capital action debit to plant, to furniture, to debtors. To plant, to furniture, to debtors account. Plant 50, furniture 5, debtors 15. Capital action to goodwill, to patents, to P&L. To goodwill 80,000. To patents is 54,000. To profit and loss account 175500. That's all, there is nothing else. Total कर लेते हैं. Start with the credit side. 60 plus 26 plus 1 lakh 50 19,500 45 50 75 and 15. It comes to 3,81,100. 38,11,00. अभी डेबिट टोटल करते हैं. 2250 प्लस 50 plus 5 15 80 54 17,500. So it is 3,81,750. This is 3,81,100. 650 का difference. कुछ भूल तो नहीं गया स्टूडेंट्स? वेट, हाँ, just let me check it once again. Preference share capital 60,000. Okay, 26,000. 60,000, 26,000. Equity share capital 1 lakh. Equity share capital 1 lakh. 11% debentures 50,000. 11% debentures 50,000. Interest due on debentures to capital action 19,500. Interest debentures 19,500. Creditors to capital action 45,000. Bank to capital action 50,000. To bank 2250. Land and building investments 75,000, 15,000. Capital action to plant 55 and 15,000.
रिडक्शन अकाउंट डेबिट 80,000 5,40,000 and 1,775,000, वो तो सही है. 1 second 60 plus 26 plus 1 lakh plus 50 plus 19,500 plus 45,000 plus 50,000 plus 90,000. मैंने टोटल में कुछ गड़बड़ किया था सुन. 60,000 plus 26,000 plus 1 lakh plus 50 plus 19,500 plus 45. This is 50 plus 50 50, then 75,000 building and 15,000. This 4,40,500. Sorry student, total मैंने गलत लिखा. So 4,40,500. 2250 plus 50 plus 5 plus 15 80 54 175500. So this is the total of debit side minus 440,500. So balance is 58,750. यहाँ पे बैलेंस आएगा. मैंने क्रेडिट में टोटल में मिस्टेक किया था स्टूडेंट्स. टू कैपिटल रिजर्व. So this is the balancing figure. Total is 4,40,500. Same total I recorded here, and we got a balancing figure. ये balancing figure is students. This is balancing figure. Then after this we start with balance sheet. Balance sheet में schedule number 1 तो compulsory है students. वो कभी ignore नहीं कर सकते. तो शेड्यूल नंबर 1 तो हमेशा फिक्स रहेगा. नंबर 1 तो शेयर कैपिटल. नंबर 1 इज शेयर कैपिटल. नेक्स्ट लाइन में ऑथराइज. अगेन ऑथराइज के केस में नहीं दिया है सुन. तो जाने तो नहीं दिया है तो नेक्स्ट लाइन. देन इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप. देन स्टूडेंट्स इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप के बाद नंबर 2 देखते हैं क्या आएगा. फॉर दैट वी रेफर एक हेडिंग में कितने आइटम्स हैं स्टूडेंट्स. ओके, टू स्टार्ट विद दैट पार्ट. अपना ओल्ड बैलेंस शीट देखो स्टूडेंट्स. प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर वो तो शेयर कैपिटल में जाएगा. ओके, 12% डिबेंचर इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. 11% डिबेंचर इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. सो 2 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया है हमको स्टूडेंट्स. 12% डिबेंचर्स एंड 11% डिबेंचर. देयर आर 2 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. सो नंबर 2 हम लोग बना लेंगे. नंबर 2 यहाँ लिखते हैं. नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. शेयर कैपिटल तो कंपलसरी होता है. सिंस टुडे वी हैव 2 डिबेंचर्स, तो दोनों लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है. इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर इज अदर करंट लायबिलिटी. क्रेडिटर इज ट्रेड पेएबल. सो एक आइटम है. गुडविल, पेटेंट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिक्स्ड एसेट है ना स्टूडेंट्स. सो नंबर 3 हमारा फिक्स्ड एसेट होगा बिकॉज देयर इज मोर देन 1 फिक्स्ड एसेट गिवन टू अस. सो नंबर 3 फिक्स्ड एसेट. इन्वेस्टमेंट एक ही आइटम है. डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल बोथ आर ट्रेड रिसीवेबल स्टूडेंट्स. सो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे नंबर 4 ट्रेड रिसीवेबल्स. बैंक एक ही आइटम है. कैश होता तो वी विल ड्रॉ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो 4 शेड्यूल्स बनेंगे. नाउ हाउ वी पोस्ट द एंट्रीज. यहाँ पे कैसे करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग. वी स्टार्ट विद द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन देखो और लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स. प्लीज लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करो. पहला लाइबिलिटी कौन सा है. 11.5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1,50,000. लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस. वापस क्रेडिट किया तो ऐड और डेबिट किया तो सबट्रैक्ट. इफ यू रिमेंबर हमने वो रूल लिखा था. तो स्टार्ट करते हैं. फाइंड 11.5% प्रेफरेंस शेयर राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट जे तक हमने रिकॉर्ड किया है. फर्स्ट एंट्री में देखो आपको डेबिट मिल गया. लाइबिलिटी डेबिटेड मींस माइनस. सो 150 माइनस 150 0. मैं आपके रेफरेंस के लिए इसको कैंसिल करता हूं. एग्जाम में ऐसा कैंसिल नहीं करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, 150 हो गया, कैंसिल किया.
Final answer 0. Further, is there any 11.5% preference share? We are finding this preference share. 14%, 13% नहीं, mix up नहीं करने का. We started with 11.5% preference share, तो first entry से last तक उसी को ढूंढना है. So first entry में है 11.5% preference share. फिर later on if you notice ना B, C, D, E, F, G, H, I, J, कहीं भी आपको 11.5% preference share नहीं मिलेगा. That means final answer 0 है उसका. If final answer is 0, ignore 11.5% preference share. Start with the second item given in balance sheet, liability side. 10% preference share, amount देखो 65,000 given in balance sheet. Right from the first entry till entry number J, find 10% preference share. A में तो नहीं, B 10% preference share. Debit किया, debit मतलब minus करने का, तो 65,000 minus 65,000. So answer is 0, students. Further, there is no 10% preference share. You can go through all entries, students. कहीं भी आपको 10% preference share नहीं मिलेगा. So final answer 0 आया था. Ignore it. It won't appear in new balance sheet. भूल जाओ. Third item is equity share 2 lakh. Find equity share right from the first entry till last. Entry number 3 में मिलेगा आपको. 2 lakh debit किया. So 2 lakh minus 2 lakh. 0. आगे भी ढूंढो but equity share. Last entry तक. देखो यहाँ पे है equity share. Sorry, यहाँ है. Equity share credited. So credit मतलब add. Liability credited add. So 1 lakh. 2 lakh minus 2 lakh 0. Then 0 plus 1 lakh. ये भी हो गया. Then equity share 2 lakh 50 credit. Liability credited means add. So 3 lakh 50. यहाँ पे equity share नहीं है. यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ. No. So final answer 3 lakh 50 and नया face value इसका 5 rupees है. You can adjustment number C. You can refer, students. Please all of you refer that adjustment number C. वहां पे लिखा था कि face value 10 से 5 हो जाएगा. So number of shares will be 70,000. So under issued, subscribe, paid up 70,000 equity shares of rupees 5. क्योंकि हमको फाइनल आंसर 3 लाख 50 आया था प्लस माइनस करके. 3 लाख 50 को डिवाइड बाई 5 किया था तो वी गॉट 70,000 शेयर्स. दिस वाज आइटम नंबर 3 इन बैलेंस शीट. नेक्स्ट 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. पहले 12% डिबेंचर अमाउंट 1 लाख 50. ढूंढो राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट 12% डिबेंचर. हाँ, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 12%. ये 11% है. वी आर फाइंडिंग 12%. 12% डिबेंचर. F 12%, G, H, I, J, nowhere there is no 12% debenture. तो स्टूडेंट्स ये 1 लाख 50 सेम रहेगा अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. सो 12% डिबेंचर्स, देर इज नो चेंज, नथिंग टू एड और डिडक्ट. जितना बैलेंस शीट में था वो सेम कॉपी कर लिया बिकॉज 12% डिबेंचर नाम का कोई आइटम जनरल एंट्री में नहीं था. सो नथिंग टू एड और डिडक्ट. 11% डिबेंचर, नेक्स्ट आइटम ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट. अमाउंट गिवन इज 3 लाख. अभी वो 11% डिबेंचर ढूंढो राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री. आपको यहां मिलेगा वो. सॉरी, 11% डिबेंचर हियर. एंट्री नंबर 4. 3 लाख डेबिट किया. लाइबिलिटी डेबिटेड मतलब माइनस. सो 3 लाख में से 3 लाख माइनस करो. सो आंसर इज 0. आगे भी देख लो कहीं 11% डिबेंचर है क्या स्टूडेंट्स? नहीं है. So final answer 0. So 11% debenture will not appear in new balance sheet because final answer 0 हो गया. Next item in balance sheet, old balance sheet given to us in the question is interest due on debentures 19,500. Find that interest due on debentures right from first entry till the last. A, B, C, D, E. Interest due on debenture debited. Liability debit किया मतलब minus. So 19,500 minus 19,500 is 0. Further, there is no interest due on debenture. If final answer is 0, forget it. It won't appear in new balance sheet. Next, creditors है. Given in balance sheet is 4 lakh 50. Find creditors right from the first entry till the last. आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे मिलेगा. एडजस्टमेंट नंबर F. 4 lakh 50 minus 45,000. So 4 lakh 5,000. Creditor is a trade payable. Trade payable का हमने कोई शेड्यूल नहीं बनाया है. Trade payable will go directly to the balance sheet. 4 lakh 50 minus 45. So we get this is creditors. For your reference, 4 lakh 50 में से हमने 45,000 माइनस किया. So we got this answer 4 lakh 5. क्रेडिटर्स के साथ बिल्स पेबल भी होता तो देन विल ड्रॉ द शेड्यूल. एक ही आइटम है तो नेवर ड्रॉ द शेड्यूल. सो वी हैव कंप्लीटेड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ स्टार्ट विद असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. पहला क्या दिया है हमको स्टूडेंट्स? गुडविल दिया है. गुडविल 80,000. असेट्स हैव डेबिट बैलेंस. इफ डेबिटेड वी मस्ट ऐड, इफ क्रेडिटेड वी मस्ट सबट्रैक्ट. सो गुडविल 80,000. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री. फर्स्ट एंट्री से ढूंढते हैं स्टूडेंट.
यहाँ कोई गुडविल बी सी डी ई नो, एफ जी एच आई जे में है स्टूडेंट्स गुडविल क्रेडिटेड, सो एसेट क्रेडिटेड मतलब माइनस, सो 80,000 माइनस 80,000 इज जीरो, सो गुडविल विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट. पेटेंट्स 54,000 गिवन. अगेन पेटेंट्स फर्स्ट एंट्री से ढूंढते आओ, ए बी सी डी ई नहीं मिलेगा, एफ जी एच आई जे पेटेंट्स क्रेडिटेड, एसेट क्रेडिटेड मतलब माइनस, सो माइनस 54,000, so 54 minus 54 is 0, forget it. Building 1,75,000 given in old balance sheet. Find building right from the first entry, A B C D E नहीं है, F G H I building debited, asset debited मतलब add, तो 1,75,000 plus 75 is 2,50,000, so building is a fixed asset. Land and building, how we got the answer students? 2,50,000 कैसे मिला हमको? हमने 175 जो बैलेंस शीट में दिया था 1,75,000 एंड एडजस्टमेंट में 75,000 डेबिट था, एसेट डेबिट मतलब ऐड, सो वी गॉट 2,50,000. बिल्डिंग के बाद प्लांट मशीनरी, इट इज 3,25,000. फाइंड प्लांट मशीनरी ए बी सी डी ई, एफ जी एच I J plant 50,000 debit credit, sorry credit, so asset credited means minus, so 2,75,000 plant 2,75,000. How we got this 2,75,000? Balance sheet में they have given us 325, because of entry, because of adjustment credited 50, so we deducted that. Plant के बाद furniture भी fixed asset होता है. How much is given in balance sheet? Refer बैलेंस शीट में फर्नीचर गिवन इज 15,000. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री. फर्नीचर है ए बी सी डी ई नो, एफ जी एच आई, फर्नीचर यहाँ पे है 5,000. प्लांट हो गया स्टूडेंट्स, मैं भूल गया कैंसिल, प्लांट हो गया. फर्नीचर 5,000, सो माइनस 5, 15 माइनस 5 विल बी 10,000, सो हियर विल रिकॉर्ड 10,000. हाउ वी गॉट 15,000 गिवन इन बैलेंस शीट minus 5,000 because of entry, or you can say because of adjustment. Furniture के बाद investment given in balance sheet is 75,000. A B C D E F G कहीं भी नहीं है investment. Directly investment you will find here students, I में. Debited, asset debited मतलब add करो, तो 75 प्लस 15, नया वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 90,000. इन्वेस्टमेंट्स का हमने शेड्यूल नहीं बनाया, इट विल गो डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट. 75,000 गिवन इन बैलेंस शीट प्लस 15,000 बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, सो इन्वेस्टमेंट इज 90,000. इन्वेस्टमेंट्स के बाद इन ओल्ड बैलेंस शीट डेटर्स गिवन टू अस इज 3,15,000, 315. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में डेटर्स है, देखो क्रेडिट, सो माइनस, एसेट क्रेडिटेड मींस माइनस, सो 315 माइनस 15 इज 3 लाख. सो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल 3,15,000 गिवन इन बैलेंस शीट. 15,000 we are deducting because of adjustment या journal entry you can say. So net answer for trade receivable debtors is 3 lakh. Okay, this is debtors. यहाँ मैं लिख देता हूँ debtors है ये, debtors. Okay. After debtors, sorry students, I'm really sorry. I'm sorry. गलती कर दिया. We have drawn, इसका हमने schedule बनाया है. I'm sorry. Debtors का हमने schedule बनाया है. I'm sorry. Because bills receivable भी था ना. Here we have drawn. So यहाँ पे लिखेंगे हम लोग. And ये trade receivable. ये था ना. So here I'm recording debtors under trade receivable. How much we got? 3 lakh. 3 lakh कैसे आया? 3,15,000 which is given in balance sheet minus 15,000 because of adjustment journal entry. Next students, bills receivable है. Bills receivable given is 1 lakh. Please you can go through the all journal entries which I have recorded. वहाँ पे देखो कहीं bills receivable का नाम नहीं मिलेगा आपको. A, B, C, D, E कहीं भी bills receivable नहीं है. F, G, H, I, J कहीं भी bills receivable नहीं है. So what we'll do, जितना balance sheet में ना same amount record करने का. There is nothing to add or deduct. 3 lakh. Sorry 1 lakh. Bills receivable. Next is bank. Bank asset होता है. उसका बैलेंस दिया है 20,000. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री एंड फाइंड बैंक. फर्स्ट एंट्री में बैंक है नहीं, सेकेंड में है नहीं, थर्ड में नो, फोर्थ नो, फिफ्थ नंबर ई नो. बैंक ढूंढ रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स.
Here bank no. यहाँ पे asset debited, bank debited, so add 20 plus 50, 70,000. Bank credited, so minus asset credited minus 2250. Building investment, we are finding bank. That's all. So 67750. This is the balance for bank. Bank मतलब cash and cash equivalent, students. This cash and cash equivalent amount, it comes to 67750. We have recorded bank balance 67750. 20,000 plus 50,000 minus 2250. So we got this answer. So बैंक जहां जहां है उसको कैंसिल कर लेते हैं. बैंक भी हो गया. और कहाँ था बैंक? ओके, नो मोर बैंक ना. बैंक के बाद नेक्स्ट आइटम स्टूडेंट्स गिवन टू असेस प्रॉफिट एंड लॉस 1,75,500. इट इज गिवन ऑन एसेट साइड. एसेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस. देखो यहाँ कहीं पीएनएल नहीं है. ए बी सी डी ई डायरेक्टली लास्ट में मिलेगा. इट इज क्रेडिटेड. एसेट क्रेडिटेड मतलब माइनस. सो आंसर विल बी 0. So it won't appear in new balance sheet. So we completed liability side, we completed asset side. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, देन वी डायरेक्टली गो टू रिडक्शन अकाउंट. उसमें देखने का कितना बैलेंस आया. वी गॉट 58,750. कहाँ पे ट्रांसफर किया? कैपिटल रिजर्व में. सो कैपिटल रिजर्व मतलब रिजर्व इन सरप्लस. सो यहाँ पे मैं कैपिटल रिजर्व लिखता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस. एंड अमाउंट वी गॉट वॉज 58,750. दिस इज द थर्ड स्टेप. लास्ट फोर्थ एंड फाइनल स्टेप. अभी ऐसे ट्रांजैक्शन ढूंढो जहां पे ऐसा कोई क्रॉस मार्क नहीं है, जिसको मैंने कैंसिल नहीं किया है. ओके स्टूडेंट्स, फॉर दैट ध्यान रखना, रिडक्शन अकाउंट मत चेक करना बिकॉज यू नो हाउ मच वॉज द बैलेंस एंड यू रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट ईयर. तो अब रिडक्शन अकाउंट भूल जाओ, उसका बैलेंस आपको पता है. सो जहां जहां रिडक्शन है ना स्टूडेंट्स, मैं उसको कैंसिल कर लेता हूं. बिगिनिंग में अभी कर लेता हूं रिडक्शन. जहां भी रिडक्शन आएगा उसको कैंसिल कर देता हूं. फिर देखेंगे कौन सा ट्रांजैक्शन बच जाता है. बिकॉज रिडक्शन का बैलेंस वी नो 58,750 एंड वी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. ओके, अब ढूंढो कौन सा ट्रांजैक्शन बाकी है जहां पे क्रॉस मार्क नहीं है, नो आइडेंटिफिकेशन मार्क. देखो ये 14% प्रेफरेंस शेयर अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है. 90,000 अमाउंट है. सो 14% प्रेफरेंस शेयर मतलब इश्यूड सब्सक्राइब में आएगा स्टूडेंट. सो हियर विल राइट 14% preference shares of ₹10, ₹6 paid up. मुझे कैसे पता चला? Adjustment number 1, 11.5% preference shares of 10 each were reduced to 14% preference shares of 10 each. तो फेस वैल्यू 10. आगे क्या लिखा था? ₹6 पर शेयर पेड अप. इसके लिए मैंने ऐसा लिखा. स्टूडेंट समझ में आ गया? फेस वैल्यू 10 है बट पेड अप वैल्यू 6. ओके, और यहां देखो मैंने लिखा भी था 14% प्रेफरेंस शेयर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 किया था. सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 15,000. सो वी हैव डन दिस. ये प्रेफरेंस शेयर्स भी कैंसिल हो गया. और कोई ट्रांजैक्शन जिसपे क्रॉस मार्क नहीं है? देखो ये है 13% प्रेफरेंस शेयर. अभी कर देता हूं. इसका नंबर 13,000, पेड अप वैल्यू 3, 13% प्रेफरेंस शेयर. सो ये 13% preference shares of ₹10 but ₹3 paid up. Adjustment number B देखो वहां कहा था. 10% preference shares of 10 each ₹5 paid up were reduced to 13% preference shares of 10 each ₹3 paid up. तो face value 10 है but paid up values 3, 39,000. How we got 39,000? 13,000 into 3, 39,000. ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा था. अभी कोई ट्रांजैक्शन बाकी है? देखो ये तीनों कैंसिल हो गया. ऑल 3 कैंसल्ड. यहाँ पे दोनों कैंसल्ड है. कैंसल्ड. ये सब कैंसिल है, ये सब कैंसिल है स्टूडेंट. नो मोर ट्रांजैक्शन लेफ्ट. तो अभी इसका टोटल करो बस. 3,50,000 प्लस 90 प्लस 39,000. सो इट कम्स टू 4,79,000. इसका टोटल करेंगे. एक ही अमाउंट है 1,50,000. डिबेंचर एक ही है. नाउ दिस 2,50,000 फिक्स्ड एसेट 275 plus 10, it comes to 5,35,000. लास्ट वाला रिसीवेबल का टोटल करो. 3 लाख प्लस 1 लाख, इट विल बी 4 लाख. 3 plus 1 4 लाख. नाउ दिस टोटल इज ना स्टूडेंट्स विल रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आ जाओ. शेयर कैपिटल का शेड्यूल नंबर क्या है? 1. तो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में नोट नंबर कॉलम 1, टोटल इज 4,79,000.
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2, उसका टोटल 1,50,000. Fixed asset number 3, 5,35,000. Fixed asset 5,35,000. ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है ना, उसका टोटल शेड्यूल नंबर 4, अमाउंट उसका 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख है. 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख. नाउ सबका टोटल आउटर कॉलम 479 प्लस 58,750, 5,37,750. 150 प्लस 0, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं दिया है. ईयर स्टूडेंट्स एक ही आइटम है, देखो ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं है. सो 4,05,000 प्लस 0,0 करेंगे तो सब 4,05,000 प्लस 1,50,000 प्लस 4,05,000. इट कम्स टू 10,92,750. फिर 5,35,000 प्लस 90. So this total is 6,25,000 outer column. Then 4 lakh plus 67,750. So it is 46,7750 plus 6,25,000. 10,92,750 is the total of balance sheet. 10,92,750 is the total of balance sheet. So इसका एडजस्टमेंट नंबर ए और बी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना स्टूडेंट्स. ओके, एडजस्टमेंट नंबर ए एंड बी ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था. Now we are starting with question number 11 students. इसका जो first 3 adjustments है students, first 3 adjustments वो important है. बाकी next adjustments जो है ना वो students हमने पहले भी किया है. Okay, total 6 adjustments है, first 3 are important. Again students, अगर expense losses होगा तो debit reduction account in this chapter. Income gains होगा तो credit capital reduction account in this chapter. All fictitious asset, losses, intangible asset must be written off. If there is any contingent liability students, if they ask us to pay, we will record the entry. अगर उन्होंने कहा sacrifice, so we'll ignore it. Directors of Hopeful Limited decided to recommend to the shareholders certain steps to put the affairs of the company back on rails. On 30th June 2003, balance sheet of the company was as under. Authorize 1 lakh equity shares of ₹1 each. Authorized capital दिया है क्वेश्चन में. Issued and paid up 85,000 equity shares of ₹1 each. Reserves and surplus is a heading. Under that securities premium है. Loan from bank is a secured loan है students, वो reserves नहीं है. Loan from bank is a liability, secured loan होता है, borrowings होता है वो. Current liability is a heading. Under that they have given us bank overdraft and creditors. Goodwill is an intangible asset, we'll write it off. Building less depreciation, computer less depreciation, investment in shares. Stock debtors, profit and loss account and asset side मतलब loss, we have to write it off. Scheme of reconstruction as approved by the competent authority was as under. Again I repeat students, इसका first 3 adjustments important है. Next 3 ना हमने पहले भी किया है. Okay, first 3 पे ध्यान देना है. Issued equity shares were reduced to ₹5 paisa each, paid up. Unpaid value of shares was subsequently called up by the company and paid by all shareholders. Balance of unissued capital was allotted to bank in part discharge of loan. Balance due was paid in cash. Authorized capital of the company is to be increased by another 50,000 shares, and these shares are to be issued to the existing shareholders as a right issue at ₹1 each. Amount due from shareholders was realized. Realized मतलब received. Creditors to give up 25% of claim and balance due to them to be converted into 12% debentures of 100 each. Interest of ₹7,000 on bank overdraft to be waived by the bank and balance overdraft to be paid off. All amounts available including security premium is to be utilized to write off losses, goodwill fully and investment in shares to the maximum possible extent. So this is books of Hopeful Limited, Journal of Hopeful Limited. So at the top it is books of Journal of Hopeful Limited.
Again, we start with adjustment number 1. Issued equity shares were reduced to 5 paisa each paid up. Okay, they have used the term paid up. ध्यान रखना. Issued equity shares were reduced to 5 paise each paid up. Unpaid value. Okay, students, पहले यहाँ तक चल जाओ. Issued equity shares were reduced to 5 paise each paid up. They have not used the term fully paid up. सिर्फ पेड अप का मतलब क्या स्टूडेंट्स? फेस वैल्यू विल रिमेन अनचेंज. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया ना, फेस वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, वैसा ही कंसेप्ट है अगेन. सो वी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट नंबर 1. एडजस्टमेंट 1 है, पहला मैं आपको मीनिंग वहां पे लिख देता हूं मैं स्टूडेंट्स. व्हाट दे हैव सेड? रिड्यूस टू 5 पैसा ईच पेड अप. पेड अप, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स face value will not change या will remain same. जो पुराना face value था वो ही रहेगा. तो face value will remain same. When face value remains same, this is the journal entry we record. किसकी बात कर रहा है? equity shares की ना students. So journal entry will be equity share capital account debit. इफ यू रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर, वहां पे मैंने क्वेश्चन भी किया था और नोट्स भी हमने लिखा था कि व्हेन दे से ना फेस वैल्यू रिमेन सेम, तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा ही था स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू रिमेन सेम, बट मैंने ना 11.5% टू रिडक्शन नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि आपको जो आप नया शेयर दोगे ना, वो सेम शेयर नहीं है, वो 14% वाला शेयर है. इसके लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा. ऑल्दो वहां पे भी फेस वैल्यू रिमेन सेम था, सेम में यहाँ भी फेस वैल्यू सेम था, बट 10% शेयर को मुझे 13% करना था. इसके लिए मैंने ऐसा एंट्री रिकॉर्ड किया, 10 to 13 टू रिडक्शन. यहाँ पे शेयर्स का कोई वेरिएशन इन राइट्स नहीं है. यू डोंट हैव टू चेंज रेट ऑफ डिविडेंड. इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. फेस वैल्यू वर रेड्यूस टू 5 पैसे ईच. पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्रीवियसली भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, टू और बाई में फर्क क्या होता है. अभी फेस वैल्यू स्टूडेंट्स देखो, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर का कितना है? 1 है. इश्यूड पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल देखो, आपको फेस वैल्यू कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 1. फेस वैल्यू आपको मिलेगा ₹1. ओके, ठीक है, मैं पेन से लिख देता हूं. फेस वैल्यू इज 1. इट इज reduced टू 5 पैसे 0.05. रेड्यूस टू मतलब नया वैल्यू 0.05 है. सो डिफरेंस कितने का है? 0.95. सो देयर इज अ गेन ऑफ 0.95 स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ शेयर्स गिवन इन बैलेंस शीट is 85,000. सो 85,000 मल्टीप्लाई बाय 0.95. 5 पैसे मतलब 0.5 नहीं होता, 0.5 50 पैसे होता है. 5 पैसे मीन 0.05. सो ओल्ड फेस वैल्यू 1 था, इट इज रेड्यूस टू. कहाँ है? बाय नहीं, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया 2-3 बार. सो व्हेन दिस ना रेड्यूस टू मतलब 1 से 0.05 हो गया नया वैल्यू. सो डिफरेंस कितने का है? 0.95. सो 85,000 इंटू 0.95. सो दिस इज द गेन 80,750. सो इक्विटी शेयर कैपिटल 80,750 टू कैपिटल रिडक्शन 80,750 बीइंग पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, पेड अप वैल्यू reduced to ₹0.05 मतलब 5 पैसे. दिस वॉज एडजस्टमेंट नंबर 1. यू कैन से ए पार्ट. सेम एडजस्टमेंट का बी पार्ट. क्यों? देखो आगे क्या लिखा था. पहले आपको कहा है कि पेड अप वैल्यू चेंज करो, वी चेंज दैट. इश्यूड शेयर कैपिटल, सॉरी, इश्यूड इक्विटी शेयर्स वर reduced टू 5 पैसे ईच पेड अप. डन. Unpaid value of shares was subsequently called up by the company and paid by all shareholders. Unpaid value. अभी हमको unpaid value मालूम करना है कि unpaid value है कितना. बड़ा आसान है स्टूडेंट्स. फेस वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स? पहला 1 था. How much we made? 0.05. 1 से आप 0.05 पे चले गए, तो यही तो आपका अनपेड वैल्यू हुआ स्टूडेंट्स. तो दिस इटसेल्फ ये आपका गेन भी था जो मैंने ऊपर रिकॉर्ड किया, एंड दिस इटसेल्फ इज योर अनपेड वैल्यू. व्हाई? ₹1 से आप 5 पैसे पे चले गए, मतलब शेयर होल्डर को अभी कितना और देना पड़ेगा? 95 पैसे. फेस वैल्यू 1 है. पेड अप वैल्यू मीन्स अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर. सो ये 5 पैसे ना, ये पेड अप वैल्यू कहा था उन्होंने, पेड अप वैल्यू. पेड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर. पेड बाय शेयर होल्डर, अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर. ओके,
So from 1 rupee we made it 5 paise. 5 paise is the amount paid by shareholder. So unpaid क्या होगा? 95 paise. Now they say this 95 paise was subsequently called up and received. आपको last time याद होगा redemption of preference shares. Called up means make a call and receive a call. So journal entry हम पहला make a call की करेंगे. Equity share call account debit to equity share capital account credit. How to get the answer? Again 85,000 shares है into 0.95 जो unpaid up value है, unpaid paid up value. 85,000 into 0.95 पहले भी हम लोग कर चुके हैं. It was 80,750. 85,000 into 0.95 is 80,750. So we'll say been calls made, and they've said receive मिल भी गया. So bank account debit to, ये लास्ट सेम में आपने ये एंट्री पढ़ी है अंडर द चैप्टर ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट. वहां पे प्रेफरेंस शेयर पे कॉल करते थे. सो यूज्ड टू राइट प्रेफरेंस शेयर कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कॉल. अभी प्रेफरेंस शेयर की जगह इक्विटी पे कॉल करना का है. सेम अमाउंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरल इंटरव्यू कॉपी. जितना मेक अ कॉल था सेम रिसीव अ कॉल हो गया. सो एडजस्टमेंट 1, as I said ना, first 3 adjustment important है students. Once again, equity shares were reduced to 5 paise each paid up. जब भी paid up term यूज करेगा ना स्टूडेंट्स, तो paid up term का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू रिमेन सेम. सो पहले मैंने वही लिखा है यहाँ पे. paid up means what? फेस वैल्यू विल रिमेन सेम, विल नॉट चेंज. तो फेस वैल्यू जब भी सेम रहता है ना, तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. फिर गेन फाइंड करने का कैसे फाइंड करेंगे? दे हैव सेड इट वाज reduced to 5 paise. 5 paise. So 1 rupee face value was given in balance sheet under issued capital. 1 से वो 5 पैसे हो गया. So कितने का गेन? बैलेंस फिगर 95 पैसे का. So 85,000 number of shares given in balance sheet under issued capital. Authorized capital कभी मत देखना. Issued capital 85,000 into 0.95. So we got that. Then same adjustment later on they say कि वो जो unpaid value है ना, उसको subsequently company called up. तो मुझे पता होना चाहिए unpaid value कितना है. बड़ा आसान. जब मैंने 1 से उसको 5 पैसा कर दिया paid up. Paid up का मतलब यहाँ I recorded. Paid up means amount paid by shareholder. Face value 1 है, shareholder ने 5 पैसे पे कर दिया. That means unpaid कितना है? 95 पैसे. तो जितना गेन है ना, उतने का ही आप कॉल करो. So that's what I have done. Call account to share capital, then call receive किया bank account to call account. Okay? So this was adjustment number 1. Again I repeat, adjustment 1, 2, 3 important है. Number 2. Balance of unissued capital. आगे नहीं पढ़ता हूं, पहले आपको unissued capital का मीनिंग बता देता हूं. Unissued capital is equal to authorized capital minus issued capital. ये फॉर्मूला होता है unissued capital का. Authorized capital मतलब number of shares, maximum number of shares which the government has allowed you as per the company law, Companies Act. Issued capital मतलब जितना आपने इश्यू किया. For that go to the balance sheet. बैलेंस शीट में देखो ऑथराइज कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करो, नॉट अमाउंट, 1 लाख. इश्यूड कैपिटल, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं स्टूडेंट्स, ये नंबर है नॉट अमाउंट. नंबर 1 लाख. सेम वे इश्यूड कैपिटल 85,000. आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर. वहां पे ना नंबर और वैल्यू सेम है. देखो 1 लाख नंबर है, वैल्यू ऑथराइज का और वैल्यू भी 1 लाख है. इश्यूड कैपिटल का नंबर भी 85,000 है और अमाउंट कॉलम में वैल्यू भी 85,000 है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर, हाँ, वैल्यू की नहीं. So 1 lakh number of shares minus 85,000. So unissued capital कितना हो गया? 15,000. So पहले मुझे unissued capital समझना चाहिए. It is authorized capital minus issued capital. 1 lakh number of shares minus 85,000. We got 15,000 number of shares. अब पढ़ो what we have to do. Balance of unissued capital was allotted to bank in part discharge of loan. Balance sheet में जाओ students. Balance sheet में लोन फ्रॉम बैंक मिला आपको बैलेंस शीट में 60,000. गॉट दैट? तो ये जो आपका अनइश्यूड कैपिटल है ना, ये आपको अपने पास नहीं रखना है. किसको देना है? बैंक को. इन पार्ट डिस्चार्ज ऑफ देयर लोन, मतलब आप लोन रीपे कर रहे हैं.
So loan from bank account debit. When we repay loan, we must write to cash bank. But cash bank की जगह वो क्या बोल रहा है, उनको ये unissued shares दे दो. So to equity share capital account. How much students? मुझे number of shares पता चल गया 15,000 और अभी वैल्यू कितना है ₹1. 15,000 into 1 करो. So we get equity share capital 15,000. Once again, balance of unissued capital. तो पहले मैंने unissued capital फाइंड कर दिया. 15,000 number of shares was allotted to bank in part discharge of loan. So part discharge 15,000 into 1. आगे पढ़ो. Balance due was paid in cash. और अभी उसका कुछ भी लोन बचता है ना, वो कैश में आप पे कर दो. So to cash bank account. Loan from bank given in balance sheet is 60,000. 60,000. 15,000 I paid in the form of shares. So balance कितना बच्चा है? 45,000. So 45,000 I paid in the form of cash bank. So narration will be loan from bank settled. Loan from bank settled. This was adjustment number 2. पहला unissued capital फाइंड किया. Authorized capital minus issued capital will got unissued capital. ये unissued capital किसको देना है? बैंक को. क्यों देना है? उनसे हमने एक लोन लिया है. So that means you are repaying a loan. So loan account debit. Actually I must write cash bank, but they said नहीं, पहला cash मत दो, पहला उनको shares दो. So loan from bank debit to equity share capital. 15,000 shares दे रहे हैं और एक शेयर का वैल्यू ₹1 है, तो it becomes 15,000 into 1, 15,000. And then they say जो बैलेंस बचेगा you paid in the cash. तो 60,000 लोन है, 15,000 in the form of shares, so 45,000 is your cash which you have to pay. This was adjustment number 2. Number 3, authorized capital of the company is to be increased by another 50,000 share. आपको number of shares बढ़ाना है. Students, when there is increase in number of shares, when there is increase in number of shares, नंबर बढ़ा रहे हो ना, वैल्यू थोड़ी बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो. नंबर ऑफ शेयर्स, नो एंट्री. तो इसका तो नो एंट्री स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर सेइंग इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स. सो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज टू बी इंक्रीज बाय अनदर 50,000 शेयर्स. यहां तक पढ़ा तो नो एंट्री, बट आगे क्या लिखा है? दीज आर टू बी इश्यूड. अब इश्यू करने की बात कर रहा है. नाउ इफ यू आर इश्यूइंग शेयर्स तो स्टूडेंट उसका तो एंट्री होगा ना, फ्रेश इश्यू जैसा. सो जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना शेयर्स हम लोग इश्यू कर रहे हैं? दे हैव सेड 50,000 at ₹1. देखो वहां लिखा है एज अ राइट इश्यू एट ₹1. सो 50,000 into 1 विल बी 50,000. सो दिस इज द एंट्री. तो पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं? ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज टू बी इंक्रीज बाय अनदर 50,000 शेयर्स. सो 50,000 मतलब नंबर, जब भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा या कम होगा स्टूडेंट्स, नो जनरल एंट्री फॉर दैट. तो इसके लिए मैंने लिखा नो एंट्री. बट स्टूडेंट्स लेटर ऑन सेम एडजस्टमेंट लिखा है, दीज आर टू बी इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज राइट इश्यू एट ₹1 ईच. तो आप इश्यू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अमाउंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर्स वॉज रियलाइज. रियलाइज मतलब मिल गया, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट लिखा. बीन राइट इश्यू मेड, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स मेड. सो दिस वाज एडजस्टमेंट 1, 2 and 3. ध्यान से स्टूडेंट्स वंस अगेन, नंबर 1 क्या था? Share capital were reduced to 5 पैसे each paid up. Whenever they use the term paid up ना students, so paid up का meaning क्या होता है students? Paid up मतलब face value आपका change नहीं होगा. So पहले face value 1 था, now they are changing the paid up value to 0.05. Face value change नहीं किया, face value अभी भी 1 ही रहेगा. So 1 से 0.05 हो गया, तो profit कितने का? 95 पैसा. That 95 पैसा है recorded here. Then they say कि अभी जो फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू में डिफरेंस है, दैट यू मस्ट आस्क एज अ कॉल. सेम एडजस्टमेंट लिखा है. सो आई रिकॉर्डेड द एंट्री फॉर मेक अ कॉल एंड रिसीव अ कॉल. मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल. एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट अनइश्यूड कैपिटल. अनइश्यूड कैपिटल का मतलब ऑथराइज कैपिटल माइनस इश्यूड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर. सो 1 लाख माइनस 85, ये बैलेंस शीट से लिया. सो अनइश्यूड कैपिटल इज 15,000. ये क्या करना है? ये बैंक को देना है. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू रीपे देयर लोन. So loan account debit to equity share capital. 15,000 number of shares, face value is 1, so 15,000. But loan 60,000 है, and then they say कि जो बैलेंस जितना भी बचेगा वो कैश में रीपे कर दो. So I repaid that.
Number 3, authorized capital of the companies to be increased by another 50,000 shares. Any change in number of shares, no entry for that. But later on they have said that these shares are to be issued to existing shareholders. आप shares issue कर रहे हो तो bank account debit to share capital. कितने shares issue कर रहे हो? 50,000 multiply by 1. ये amount column में मैंने गलती से पेन से लिख दिया, should be recorded with pencil students, आपके रेफरेंस के लिए कि number of shares 50,000 and multiply by 1, so we get 50,000. Okay, so now adjustment number 4 onwards अभी आसान है student. Now next part they are talking about creditors. Number 4 देखो, creditors are to give up 25% of their claim. creditors ने अपना claim माफ कर दिया, छोड़ दिया. So liability है, claim वो लोग छोड़ रहे हैं, good for us, profit है कंपनी के लिए. So journal entry will be creditors account debit to capital reduction because creditors ने अपना claim माफ किया. How much? Not the entire amount, 25%. So creditors account debit 25%. देखो creditors 64,000 है, उसका 25%. So we get 16,000. But आगे पढ़ो, अभी adjustment खत्म नहीं है. What they say? And balance due to them. Balance बचा ना students? Balance बचा है अभी भी because this is 64. 16,000 there is a gain. So balance कितना बचा? 48,000. Simple. उसका क्या करना है? Balance due to them to be converted into 12% secured debenture. So credit किसको करना है? It's not an assumption. They have said कि balance जो amount है you have to convert it into 12% debenture. Simple सा entry पहले भी हम लोग ने किया है. Being creditors claim settled. Number 5 देखो, इंटरेस्ट ऑफ 7,000 बैंक ओवरड्राफ्ट. स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में जाओ, करंट लाइबिलिटी का हेडिंग है ना, अंडर दैट विल फाइंड बैंक ओवरड्राफ्ट और ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑफ ₹7,000 ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट टू बी वेव्ड. वेव मतलब सैक्रिफाइस, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है. कंटिंजेंट लाइबिलिटी किसको कहते हैं? जो बैलेंस शीट में नहीं होता है, बट ये बैलेंस शीट में है. बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 57,000. तो ठीक है, वेव लिखा है मतलब सैक्रिफाइस, हमारे लिए गेन होगा. कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर सैक्रिफाइस होता है तो वी से नो गेन नो लॉस, उसको भूल जाते हैं हम लोग इफ इट इज सैक्रिफाइस. बट दिस इज नॉट ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी, दिस इज गिवन इन बैलेंस शीट. Interest of ₹7,000 bank overdraft to be waived by the bank and balance overdraft to be paid off. So bank overdraft account डेबिट कितना है वहां पे बैलेंस? 57,000. इसमें से 7,000 उन्होंने वेव किया. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज वेव 7,000. सो लाइबिलिटी वेव मतलब गेन फॉर अस. ऑल गेन्स इन दिस चैप्टर क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन 7,000 और बैलेंस दे क्लियरली सेट पेड ऑफ. सो टू बैंक अकाउंट बैलेंस कितना बचता है? 50,000. सिंपल. जैसा क्रेडिटर्स था, कुछ पार्ट उनका रेड्यूस हुआ था, बैलेंस यू कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर. हियर दे आर सेइंग कि सर्टेन पार्ट इज गेन फॉर यू बट बैलेंस यू हैव टू पे. कन्वर्ट नहीं करना, यू हैव टू पे. सेम वजह सा लोन था यहाँ पे, कुछ पार्ट हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, कुछ पे किया. हियर देयर इज सम गेन एंड सर्टेन पार्ट वी हैव टू पे. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज नंबर 5. लास्ट नंबर 6 वो नहीं भी मेंशन किया हो तो हम लोग हमेशा करते हैं. ऑल इंटैंजिबल एसेट इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ लॉसेस एंड गुडविल. पहले देखो गुडविल, whenever we write off any asset it's a loss for us. So all losses in this chapter capital reduction account debit. Capital reduction account debit, we are writing off goodwill account. So पहला goodwill credit and they have given us P&L account also students last में asset side पे. Goodwill देखो 22,600 22,600 and profit and loss at 68,300. 22,600 plus 68,300, so it comes to 90,900. अभी भी वो एडजस्टमेंट में कुछ पार्ट बाकी है. इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, उसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, ऐसा वर्ड्स यूज किया है. इसका मीनिंग सिंपल बताऊं, मीन्स draw capital reduction account and any balance, वहां पे जो भी बैलेंस आएगा
गोज टू, हम लोग कैपिटल रिजर्व में लिखते थे ना, गोज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये मीनिंग है उसका। मतलब ड्रॉ रिडक्शन अकाउंट, बैलेंस आया तो हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर मत करना, ट्रांसफर इट टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज द मीनिंग, टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। सो अभी हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर ड्रॉइंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री, देखो रिडक्शन अकाउंट कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट एंट्री रिडक्शन क्रेडिट, सो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 80,750। सेकेंड एंट्री कॉल, इसमें नहीं है, सेकेंड बी में भी, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे कोई है कैपिटल रिडक्शन? नो। थर्ड में है कैपिटल रिडक्शन? नो। फोर्थ में है कोई कैपिटल रिडक्शन? क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स 16,000। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन? यस, बाय बैंक ओडी अकाउंट ओवरड्राफ्ट अकाउंट 7,000। यहाँ पे डेबिट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल 22,600, 68,300। देर आर नो मोर ट्रांजैक्शन, इसको क्लोज करो। देखते हैं अभी बैलेंस कहाँ पे आता है। 80,750 प्लस 16 प्लस 7,000, सो इट कम्स टू 1,03,750। अच्छा, वहां पे क्या लिखा था? ऑल अमाउंट्स अवेलेबल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा स्टूडेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, दैट इज द मीनिंग। सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसको भी यूज करना है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम से बैलेंस शीट में 15,000 है, प्लस 15 भी कर लेते हैं। सो दिस इज 1,18,750। सो सेम टोटल ईयर 1,18,750 minus 22,600 minus 68,300, 80,750 plus 16,000, 7,000, 15,000. Same total I recorded here, minus 22,600 minus 68,300. So balance is 27,850. So कहाँ पे जाएगा? उन्होंने कहा not in capital reserve, they have said investment में 27,850. So this is balancing figure students for us, ये balancing figure, okay? बट ये एंट्री हमको भूलना नहीं चाहिए, ये एंट्री लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला, बिकॉज वो एडजस्टमेंट में कहा था। एडजस्टमेंट नंबर 6 यू कैन से ए, and this was adjustment number 6B part. All amounts available including securities premium. So I must record this entry because this was asked. Securities premium account debit to capital reduction account. 15,000, from where I got this 15,000? ये balance sheet में दिया था. Being premium, securities premium utilized. नॉर्मली हम लोग जो भी बैलेंस आता था कहाँ ट्रांसफर करते थे? इन कैपिटल रिजर्व में, बट वो एडजस्टमेंट नंबर 6 में लिखा था कि वो बैलेंस किसके लिए यूटिलाइज करना? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, इसके लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में। तो नंबर 6 का ही यू कैन से सी पार्ट है ये, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग? नॉर्मली हम लोग कैपिटल रिजर्व में लिखते थे, बट इन दिस केस दे हैव सेड नहीं कि उसको इन्वेस्टमेंट में लिखो, सो यू मस्ट इंडिकेट दैट इन अवर जर्नल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट क्रेडिट। बैलेंस वॉज 27,850, 27,850. Mark this question as important students, mark this question as important. First 3 adjustments तो important था ही, एक बार और पहले भी हमने किया है स्टूडेंट्स ऐसे एडजस्टमेंट। इफ यू रिमेंबर
वो बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर किया था? लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ऐसा कुछ था. क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट ऐसा किया है हमने पहले. ओके, सो यूजुअली वी ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व, बट हियर जैसे नहीं, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करो, तो मैंने वो कर लिया. हाँ, ये नया था, यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम. यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू रिडक्शन, ये एंट्री मैंने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया, एंड दैट इफेक्ट आई हैव गिवन हियर. एक्चुअली ये पहले आना चाहिए था, देन आई मस्ट ड्रॉ द अकाउंट. ओके, मैं भूल गया था, सो आई रिकॉर्डेड बिलो. First I must record 6A, then I must record 6B, then I must draw this account, reduction account. Okay, पहला 6A, 6B, then reduction account, then ये entry record करना चाहिए. Okay, so this was the question. Mark this question as important, students. इसके सारे एडजस्टमेंट्स अच्छे हैं स्टूडेंट, एंड लॉन्ग टाइम बैक पूछा था, अभी तक वापस रिपीट नहीं किया. दे कैन रिपीट ऑल्सो ना, इसके लिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ओके, थैंक यू.